Assalamualaikum, Achu. Today we will summarize or discuss the lab diagnosis of all the general bacteriology, and that will include all of it. I hope you all are have understood up to now whatever we have discussed. Are you okay with all the topics? Hello. Yes, ma'am. आज हम lab diagnosis पे बात करेंगे. Lab diagnosis, what do you understand by lab diagnosis? Any idea? मैम जो ब्लड टेस्ट वगैरह के रिजल्ट्स वापस आते हैं उस पे बेस्ड जो हम डायग्नोसिस करते हैं. हाँ. और anyone? पेट्री डिश के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना या डिजीज का कल्चर लेके. बिल्कुल ठीक बात है. और कोई बता सकता है कोई और चीज? Any other point you have in your mind about it? Tumor markers. Hmm? Tumor markers. markers. When we are talking about bacteriology, I don't think so that tumor markers will come in or fit in. Basically, lab diagnosis का मतलब ये होता है जब हम general bacteriology discuss कर रहे हैं यानी bacteriology discuss कर रहे हैं तो lab diagnosis means that how you are going to diagnose any bacterial infection in someone's body. Okay, so this is the basic definition of the lab diagnosis whenever we are talking about bacteriology. So these are the tests which we will perform in order to find out which organism is causing infection in a particular system of someone's body. Okay. There are two different approaches for the lab diagnosis. Number one is the direct bacteriological approach in which you will diagnose the organism itself. By staining and by culturing, you will see the colonies on the petri dish or the culture plates, and you will see the slides of bacteria under the microscope, that whether they are gram-positive or negative and all the details of the staining. Second point is that second point or approach is immunological approach. You are not going to find out the direct bacteria, but you will find the response of your body against that bacteria, because that bacteria is a foreign body for your human body. So the approach or the behavior of your body, we will find out whether the antibodies for that particular bacteria is present in your body or not, whether they can be detectable or not, or you will find out the DNA or the nucleic acid material of that particular bacteria in your body, and we will find out that if that DNA is present, you will diagnose the bacteria that this bacteria which we are talking about in someone's infection or in someone's body's infected part. I hope it is clear. We will discuss in detail so you will get it all through. First of all, we will detect bacteriological diagnosis. इसका मतलब ये है कि एक बंदा है जिसको कोई इन्फेक्शन हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा उसके लिए कि हमें पता चल जाए कि उसको क्या इन्फेक्शन है ना, हाउ वी विल ट्रीट इट. आजकल होता क्या है, यूजुअली जो स्मॉल कोएक्स और क्लिनिक वाले हैं वो तो ब्लाइंड एंडेड मेडिसिन देते हैं बिकॉज दे आर नॉट डॉक्टर्स. वो क्या करते हैं, तुक्के पे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं एंड दे ट्रीट देम विद एनी एंटीबायोटिक दे वांट टू. हालांकि ऐसा है नहीं, जिसकी वजह से ही रेजिस्टेंट पैटर्न जो है वो आ गया है. सही बैक्टीरिया की तशखीस करना बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपके मरीज में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और फिर वो जो बैक्टीरिया है वो किस मेडिसिन को, किस एंटीबायोटिक को एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम वही एंटीबायोटिक अपने पेशेंट में रिकमेंड करें. ये काम है हमारा बीइंग बैक्टीरियोलॉजिस्ट और अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, वो हमने कैसे डायग्नोज करना है. सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ सकता है. हमारे पास ब्लड आ सकता है एज अ स्पेसिमेन, हमारे पास CSF आ सकता है. डू यू नो व्हाट इज CSF? हेलो. Cerebrospinal fluid. बिल्कुल ठीक सर, इट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड जो हम निकालते हैं वो है. अब बेसिकली ये जो फ्लूइड है बिटवीन योर मेनिंजेस एंड द ब्रेन होती है. इसमें अगर इन्फेक्शन हो, अगर आपको मेनिंजाइटिस है बच्चे को किसी को, या कोई बैक्टीरियल जो है न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस है वो हो जाए, तो हम CSF के लिए मूव करते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक CSF ऑफ द पेशेंट एंड we will process it for the bacteriological identification. Then sputum हो सकता है if there is any chest infection or lung infections. Then urine हो सकता है if there is UTIs or any
urinary tract infection at any particular point. You will take urine so that you can find out the findings, whether there is, first of all, you will find out whether there is UTI or not, that is urinary tract infection, or if it is there, then what is the organism which is causing it. Then pus ho sakti hai, and pus from anywhere of your body. Either it is from skin, from some wound, or some other lesion which get infected later on. ये pus का sample हो सकता है, या stool हो सकता है if you having any gastrointestinal tract infection. तो उस सिलसिले में हम stool को sample लेते होते हैं. ये specimens हैं जो being a microbiologist आपके पास lab में आ सकते हैं. You should know blood, CSF, sputum, urine, pus और stool. सबसे पहले क्या होता है, day 1 पे इनमें से कोई भी sample आपके पास आ गया है, तो what we will do is you will first of all culture that organism, that sample or that specimen. If it is blood culture, तो वो usually blood culture bottles में ही आता होता है, तो वो हम direct blood sample लेके उसी के अंदर डाल के lab वालों के पास भेजा जाता है. Then if it is sputum or this one urine or stool, any other culture, then you have to put it direct on the culture plates which are recommended for it. इसलिए क्या करते हैं हम कि एक बेसिक कल्चर प्लेट लेते हैं जो हर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए अलाउ कर सकती है, जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, जैसे ब्लड एगर हो गया, जैसे चॉकलेट एगर हो गया, या और हम साथ एक डिफरेंशियल पे डाल लगाते हैं ताकि हमें उसकी कोई ऐसी क्वालिटीज पता चल जाए जिससे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में हमारी हेल्प हो सके. वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाती भी हूँ. और उसके अलावा हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम डायरेक्ट कल्चर उसकी स्टेनिंग कर लेते हैं. अब ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं, इफ इट इज ट्यूबरक्लोसिस तो हम उसकी जेरन स्टेनिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ग्राम स्टेनिंग में नहीं विजुअलेंट होगा, बिकॉज उसमें पॉलीपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन चेन नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट है आपकी माइकोलिक एसिड की चेन, तो दैट विल लीड टू द एब्रेशन इन ओनली इन जेरन स्टेनिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस. अदरवाइज हम ग्राम स्टेनिंग कर लेते होते हैं ऑन डे 1. हमें ये अंदाजा होता है कि ग्राम पॉजिटिव कोका है या नेगेटिव है, या उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है या नेगेटिव पॉजिटिव रॉड्स है या नेगेटिव रॉड्स है इन द स्पेसिमेन यू हैव. फर्स्ट डे हमने कल्चर लगा के छोड़ दिया. कल्चर हम कौन सी प्लेट पे लगा सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ प्लेट्स दिखाई हैं ऑन द स्क्रीन. दिस इज ब्लड कल्चर, एज इट इज रेड कलर करता है. ये बेसिक न्यूट्रिएंट में हम जब ब्लड ऐड कर देते हैं 5%, देन ये ब्लड कल्चर हमारा बन जाता है. इसी को अगर हम हीट कर दें, लाइक आफ्टर पुटिंग, यूजुअली हम मीडिया बना के उसके अंदर ब्लड डालते हैं एंड देन वी पोर इट इन दिस पेट्री डिश टू मेक इट अ ब्लड कल्चर. लेकिन अगर हम इसी को हम हॉट करें और कर दें, हम उसको हिमलाइज्ड कर दें ब्लड को, तो वो चॉकलेट एगर बन जाती है लाइक दिस वन. Can you see this? The third one in your picture. And Yes, then ma'am. is the new, hello? This is chocolate agar beta. And this is the nutrient agar, जो कि egg white की तरह का कलर इसका होता है, ऑफ वाइट, and it is translucent and easily ले सकते हो इसके थ्रू एंड थ्रू. एंड ये बेसिक आपकी मीडियाज हैं जिन पे आपने कल्चर लगाना ही लगाना है, कोई भी कल्चर. उसके बाद आ जाता है जी ये सी ग्रीन काइंड ऑफ इसका कलर है, एक्वा ग्रीन यू कैन से आल्सो. ये है आपका क्लेड, and this is particularly for the urine samples because it is cysteine lysine electrolyte deficient agar. तो ये बाकी किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देती, ओनली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करेंगे इसके. और उसके अलावा आप इनकी लैक्टोज फर्मेंटेशन एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन भी देख सकते हैं इन द क्लैड. उसके बाद आपका ये जो आ जाता है, ये दिस इज पिंक और मेजेंटा ट्रांसपेरेंट कलर्ड कल्चर प्लेट एंड दिस इज कॉल्ड मेकॉनिकी एगर. ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपका पूरा एक प्रैक्टिकल है फॉर द कल्चर प्लेट, उसके ऊपर हम ये डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह. अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रही हूँ कि ये 4-5 प्लेट्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं इन द लैब डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर 3 मैंने आपको बताई हैं, दैट इज ब्लड, देन न्यूट्रिएंट एंड देन द चॉकलेट एगर. ये तीनों जो हैं वो आपकी बेसिक मीडियाज हैं, ये दे कैन ग्रो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन देम. जबकि जो नीचे वाली दो आपको दिखा रही हूँ, क्लेड एंड मेकॉनिकी, दे आर बेसिकली द आपकी डिफरेंशियल मीडियाज हैं. दे डिफरेंशिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, लाइक लैक्टोज फर्मेंटेशन एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन. These are also defined in the मेकॉनिकी as well as क्लेड. इतनी बात समझ लगी आप लोगों को?
हेलो, मैम ये Yes, दोबारा ma'am. बता दो। ओके, दोबारा बता दूं, मैं दोबारा आपको बताती हूँ बेटा। सबसे पहले ये बताऊंगी, कल्चर प्लेट्स हमें चाहिए उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। आपकी बॉडी के अंदर वो किसी न किसी सेल के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, तो जब हम उनको आपकी बॉडी से निकालते हैं किसी भी स्पेसिमेन की शक्ल में, चाहे वो कल्चर हो, वो स्प्यूटम हो, चाहे यूरिन हो, चाहे स्टूल हो, चाहे ब्लड ही क्यों ना हो, या चाहे पस का डायरेक्ट सैंपल हो, तो उनको हमें ग्रो कराने के लिए खास मीडिया चाहिए, खास एक बेसलाइन बैकग्राउंड, एक ग्राउंड चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो करेंगे, जिसमें उनकी न्यूट्रिएंट्स की कंप्लीशन हो सके, जिसकी बेस पे उन्होंने ग्रो करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो these are those culture plates which are made by different chemicals, biochemicals, and these are used to grow bacteria artificially in the lab. तो अब हम क्या करेंगे कि हम ब्लड, न्यूट्रिएंट एंड चॉकलेट जो है वो आपके बेसिक मीडियाज हैं, और इनरिच्ड है दोनों। ब्लड एंड चॉकलेट को इनरिच्ड भी कहते हैं। ये सारी डिटेल हम अपने प्रैक्टिकल में करेंगे। आपको ये पता चाहिए बस दो तरह के होते हैं मेन कल्चर प्लेट्स, एक वो जो हर चीज को ग्रो करवाते हैं बेसिक मीडियाज, और एक वो जो डिफरेंशियल हैं, जो कि टू डिफरेंट ग्रुप्स को ग्रो करवाएंगे लेकिन डिफरेंशिएट भी करेंगे कि क्या वो लैक्टोफर्मेंटर है या नहीं, क्या वो यूटीआई कॉजिंग है कि नहीं, इस सब चीजों को डिफाइन करेंगे। तो दैट्स व्हाई जो नीचे दोनों प्लेट्स हैं, ग्रीन एंड पिंक, they are clad in McConkey, जबकि ऊपर तीनों जो है वो बेसिक न्यूट्रिएंट प्लेट्स हैं, ब्लड, न्यूट्रिएंट एंड चॉकलेट। ये बेसिक आपकी कल्चर मीडियाज हैं जिन पे आपको ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है। उसके बाद हम उसको डिफाइन कर सकेंगे ना कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है बाय डिफरेंट टेस्ट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आई होप यू गेट इट। वही हम बार बार पढ़ेंगे, आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। आपकी बुक में जो लैब डायनासोर चैप्टर है उसमें एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कौन सी कल्चर प्लेट पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। आप वो उसको जरा एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उतना बस आपको जानना फिलहाल जरूरी। ओके, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम करते हैं स्टेन बिकॉज जो सेल वॉल है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, लाइक ग्राम पॉजिटिव की डिफरेंट है, ग्राम नेगेटिव डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल we define the or microorganisms or bacteria into gram positive or gram negative bacteria. उसके पीछे लॉजिक क्या है ग्राम स्टेनिंग की? वो क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर स्टेन्स यूज करेंगे, स्टेन्स यूज करेंगे, ग्राम स्टेन्स कहते हैं उनको। एक जो है वो ग्राम स्टेन नंबर 1 है, दैट इज क्रिस्टल वायलेट, और नंबर 2 है दैट इज सैफरनिन। तो दिस इज द बेसिकली अ प्रैक्टिकल you will be having in later days when you will come back inshallah after Eid. Then this is important. Gram staining practical is very important because this is coming in every OSPE and every practical. तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। लॉजिक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बिकॉज हम सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक अ स्मेयर। आप स्मेयर मेकिंग भी आपने कर ली हुई है लास्ट एचजीडी में। आपने स्मेयर बनाना है, चाहे कोई भी सैंपल हो आपके पास, कोई भी स्पेसिमेन हो, चाहे वो स्प्यूटम है, चाहे वो पस है, चाहे वो स्टूल है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो CSF है। यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द स्मेयर। जितने लिक्विड स्मेयर स्पेसिमेंस होते हैं उनमें आपको नॉर्मल सलाइन डालने की जरूरत नहीं है। आप बस एक 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन डाल लें या CSF डाल लें एंड यू विल मेक इट हीट ड्राई। पहले एयर ड्राई करते हैं, फिर हीट ड्राई करते हैं आफ्टर इमर्सिंग इट ऑन द स्टेन ऑन द लेबल्ड दिस वन स्लाइड, एंड देन आप उसको हीट फिक्स करते हैं। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होगा ग्राम स्टेनिंग का, दैट इज पुटिंग डाई ऑन द स्लाइड विद क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, फर्स्ट डाई हम डालेंगे क्रिस्टल वायलेट। ये क्या करेगी, ये स्टेन कर देगी सेल्स को विद ब्लू कलर। आपके सेल वॉल के जो सेल्स हैं उनको ब्लू कलर करेगी आपके बैक्टीरियाज को। उसके बाद क्या करेंगे हम 1 मिनट के बाद हम उसको वॉश करते हैं और फिर हम डालेंगे आयोडीन। नाउ व्हाट इज आयोडीन? इट इज बेसिकली अ मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न कैटलिस्ट की तरह होता है इन स्टेनिंग। वो एनहांस करता है आपकी स्टेन को। जो सेल्स अभी तक स्टेन प्रॉपर्ली नहीं हुए होंगे क्रिस्टल वायलेट से, आयोडीन उनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना के उनको डीप डाउन जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसमें ले जाएगी और आपकी पूरी लेयर जो सेल वॉल की है पेप्टिडोग्लाइकन की उसको स्टेन करेगी, ताकि कोई सेल भी ऐसा ना रह जाए जो कि प्रॉपर्ली स्टेन ना हो। तो आयोडीन हमारी हेल्प कर रही है टू एनहांस द स्टेनिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियाज विद द क्रिस्टल वायलेट डाई। थर्ड स्टेप, इसके बाद 1 मिनट आपने इसको भी रखा, उसके बाद आपने इसको वॉश आउट कर। देन व्हाट यू विल डू इज यू विल पुट अल्कोहल। ये डीकलराइजर है, ये आपका सारा एक्स्ट्रा स्टेन जो है वो उसको वॉश आउट कर देगा फ्रॉम द स्लाइड। जो आपने स्मेयर बनाया है उसमें से सब एक्स्ट्रा स्टेन को, जो ग्राम क्रिस्टल वायलेट स्टेन है उसको वॉश आउट कर देगा। सिर्फ अब स्टेन ग्राम स्टेन वो ये क्रिस्टल वायलेट रहेगी। तो उन सेल्स के अंदर जो कि बड़ी लेयर है, जो कि क्रिस्टल ग्रानुल के अंदर बड़ी लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है,
लेकिन बड़ी है, उनमें रह जाएगी, बाकी सब में वॉश आउट हो जाएगी। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं आपकी सेल वॉल की, उन सब में से ये वॉश आउट कर देगी अल्कोहल और डीकलराइज कर देगी बाकी सेल वॉल को। एंड दिस विल गिव द पर्पल कलर टू द पर्पल सेल्स, ये ब्लू कलर, लेकिन ग्राम नेगेटिव और बाकी सब लेयर्स जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। फोर्थ स्टेप इज काउंटर स्टेन। नाउ ये सेफ्रन जो है that will stain the other parts of the cell wall, leaving behind the peptidoglycan. Peptidoglycan में तो ऑलरेडी क्रिस्टल वॉलेट सब आ गया है, वो फिक्स हो गया है विद द आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके अलावा जितनी बाकी जगह होगी उसको हम पिंक स्टेन, रेड स्टेन हो जाएगा या पिंक स्टेन हो जाएगा विद द काउंटर स्टेन दैट इज सैफ्रनिन। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला स्लाइड के ऊपर स्मेयर बनाने के बाद और उसको छोड़ दिया फॉर 1 मिनट। उससे क्या हुआ कि जो आपकी ग्राम पॉजिटिव होने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स, इनका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक है इन सेल वॉल, वो सब पर्पल या ब्लू स्टेन हो जाएंगे। आयोडीन क्या करेगी, जो थोड़े बहुत सेल रह जाएंगे वो उनको भी फिक्स कर देगी और कॉम्प्लेक्सेस बना लेगी, ताकि जब आप वॉश आउट करें इसको तो वो वॉश ना हो विद द अल्कोहल डीकलराइजर। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आपकी फिक्स हो जाएगी एंड विद कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिस वन क्रिस्टल वॉलेट एंड द आयोडीन। उसके बाद जब आप वॉश आउट करेंगे विद अल्कोहल तो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस से सारा क्रिस्टल वॉलेट वॉश आउट हो जाएगा एंड देन दैट विल बी कलर्ड विद सैफ्रनिन, जो कि आपकी काउंटर स्टेन है। अब जो तो ग्राम पॉजिटिव का हमारे पास ये रॉड्स हैं, दे विल स्टे सेम, दैट इज पर्पल और ब्लू, उन पे काउंटर स्टेन सैफ्रनिन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो आपके ग्राम नेगेटिव हैं, जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है और उनमें एक्स्ट्रा स्पेसेस भी पड़ी हुई थी ये क्रिस्टल वॉलेट, वो सब वॉश आउट होके सैफ्रनिन को अपने ऊपर ले लेंगे। तो क्या होगा, इन द लास्ट स्टेप द ग्राम नेगेटिव रॉड्स या कोकाई विल हैव दिस पिंक और रेड कलर इन इट, while the gram positive कोकाई or rod they will still remain the blue or purple under the slide जब आप उसको देखेंगे। I hope it is clear। मैं इसको आपको आगे दोबारा see this। First of all, you will fix the slide. First of all, you will fix the slide with this way making heat fixation करते हैं हम। Then you will put crystal violet, and then you will put iodine treatment. You will give iodine. Then you will decolorize it. जब decolorize करेंगे ना तो उसमें से सारे जो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव उनमें से सारा पर्पल से निकल जाएगा, बिकॉज उनकी तो पेप्टिडोग्लाइकन ना होने के बराबर है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं अदर देन पेप्टिडोग्लाइकन, उसमें वो डिकलराइज हो जाएगा सब कुछ एंड इट विल गेट रेड और पिंक कलर आफ्टर गेटिंग सैफ्रनिन दैट इज काउंटर स्टेन। ये भी सेम वही है, आपने सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट डाला, देन आपने उसको 1 मिनट रखा, उसको वॉश कर दिया, देन आयोडीन डाला, 1 मिनट रखा, वॉश कर दिया, देन यू पुट द अल्कोहल दैट विल डीकलराइज। इसको में रखने की जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट पुट इट एंड यू विल वॉश इट। और उससे क्या होगा, जो भी हमारे जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं थी और एक्स्ट्रा स्पेसेस में क्रिस्टल वॉलेट डाई पड़ी हुई थी, वो सब वॉश आउट हो जाएंगे एंड जब आप सैफ्रनिन डालेंगे तो दे विल गेट पिंक और रेड कलर। यहाँ पे इन्होंने रॉड को ही ग्राम नेगेटिव दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए, और कोकाई को कोकाई दिखाया, ग्राम पॉजिटिव को कोकाई दिखाया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि हाउ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई रॉड्स एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई गेट 2 डिफरेंट कलर्स। ये क्लियर है यहाँ तक? आई होप इट इज क्लियर। डिड यू गेट दैट? Yes, ma'am. ओके, ये आपको आइडिया बेसिकली हो जाना चाहिए, थ्योरेटिकल आइडिया। इंशाल्लाह वी विल परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल इन द लैब। अच्छा, डे 1 पे आपने कल्चर लगा दिया और स्टेन कर दिया, कुछ आइडिया आपको हो गया। अंडर द माइक्रोस्कोप आपने देखा आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव रॉड्स और नेगेटिव कोकाई, एक रफ आइडिया आपको हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, जब डे 2 पे आप आए लैब वापस, आपने वो कल्चर प्लेट्स ओपन करके देखनी है एंड देन यू विल सी कि वो आपने व्हाट टाइप ऑफ कॉलोनीज यू गेट। अब उनकी डिफरेंट, हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कल्चर वो कॉलोनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर प्लेट पे डिफरेंट है, और उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं 1 by 1 विद द बैक्टीरिया। तो उस डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, हम जैसे जैसे स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में एक एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे, हम उसके साथ साथ सारे उनकी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि वो कल्चर प्लेट पे कैसे नजर आएंगे, कैसे आप कल्चर प्लेट पे देख के ये बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है और या क्या इसके पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, क्योंकि आपने उनको लिखते जाना है इन ऑर्डर टू डायग्नोज द बैक्टीरिया। सो व्हाट यू विल डू इज कि अब आपके पास ग्राम उस पे कल्चर प्लेट पे प्रॉपर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है, ओके, इन द डे 2। अब आप क्या करेंगे, अब उस कल्चर से हम दोबारा स्मेयर बनाएंगे उस कल्चर प्लेट से और फ्रॉम द कॉलोनी, और फिर हम स्टेनिंग करेंगे इन ऑर्डर टू कंफर्म अवर ग्राम स्टेनिंग ऑफ डे 1।
उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्टन बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम आइडलाइज करेंगे और परफॉर्म करेंगे इन द लैब, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया कर सकें। डे 2 पे हमारी मोस्टली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आफ्टर रीडिंग द बायोकेमिकल टेस्ट। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट ऐसे हैं जिनको 24 आवर्स इंक्यूबेशन चाहिए होती है, तो हम वेट करेंगे और उसको हम डे 3 पे ले जाएंगे, अदरवाइज हम डे 2 पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि इट्स ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव कोका या ग्राम नेगेटिव रॉड्स, तब हम इनकी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी भी लगा सकते हैं। आपको सम आइडिया हो जाता है बिकॉज ऑफ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बायोकेमिकल टेस्ट कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्टली हम डायग्नोज करने वाले हैं। तो हम एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी भी उसकी उसी दिन लगा देते हैं। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी आप लोग कर चुके हैं, हम दोबारा कल रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह इन द रिवीजन। उसमें हम क्या करेंगे कि वी टेक द सिंपल न्यूट्रल एगर या मोलर रिटन एगर, उसके अंदर हम सारा पूरा कवर करते हैं द ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक सोल्यूशन, एंड देन हम उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल डिस्क लगा देते हैं डिफरेंट स्पेसिस, एंड देन हम उसको डायग्नोज करते हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, हाउ एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी इज परफॉर्म्ड एंड बेसिक उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम कैसे इनको करेंगे डायग्नोज। अब मैं आपको एक ब्रीफ चार्ट दिखाती हूँ। दिस इज ग्राम पॉजिटिव कोका है, हमने ग्राम स्टेनिंग कर ली, कल्चर कर लिया, उसके बाद हमने ग्राम पॉजिटिव, हमारे पास हमें पता चल गया कल्चर पे कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमने कल्चर करके स्टेन किया है वो ग्राम पॉजिटिव है। या तो वो ग्राम पॉजिटिव कोका होगा या वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होगा। बेसिलाई मीन्स रोड्स, बेसिलाई होंगे तो ये सारे जो है यूजुअली एनारोबिक हैं, तो इनको एनारोबिक कुछ मिलते हैं और ये बड़े रेयरली फाउंड होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोका आर मोस्टली व्हिच आर डायग्नोजिंग इन द लैब, और ये बहुत कॉमनली फाउंड है बिकॉज आपकी स्किन में पड़े हुए हैं, आपकी एवरीडे लाइफ में है, इसलिए। अब इनमें क्या होगा कि आइदर दे विल बी स्टेफिलोकोकाई और दे आर स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेप का मैंने आपको बताया था, स्टेफिलोकोका यूजुअली बंच शेप्ड और ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप देखेंगे तो ये या तो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होंगे या ये टूटे फूटे पड़े होंगे या मैस में पड़े होंगे, पूरा एक नेटवर्क होगा इनका। जबकि जो स्ट्रेप्टोकोका हैं आइदर दे विल प्रेजेंट इन कपल्स, टू टू बाय, इनकी शक्ल होती है बाय बाय कपलेट में पड़े होते हैं, और या फिर दे विल बी इन चेन्स। दीज आर द टू मोस्ट कॉमनली फाउंड कैरेक्टर्स ऑफ इट। ठीक है, अब इनको हमने बायोकेमिकली कैसे डिफरेंशिएट करना है। वी विल परफॉर्म कैटलिस्ट टेस्ट। ओके, इफ इट इज पॉजिटिव यू विल बी हैविंग स्टेफिलोकोकाई, इफ इट इज नेगेटिव यू विल बी हैविंग स्ट्रेप्टोकोकाई। ये मैं बेसिकली आपको ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, आपको भी ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस एक पता होना चाहिए कि किस तरह बायोकेमिकल्स हमारी टेस्टिंग हमारी हेल्प करती है इन ऑर्डर टू डायग्नोज फाइनल डायग्नोसिस ऑफ एनी बैक्टीरिया। तो स्टेप सबसे पहले हमने दो ग्रुप्स को डिफाइन कर लिया, स्टेप एंड स्टेप, एंड देन आगे स्टेप को फिर हम आगे 3 डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसकी, उनको कैसे हम करेंगे, कोआगुलेज से डिफरेंशिएट करेंगे। इट्स अनदर बायोकेमिकल टेस्ट। तो ये हम बेसिकली जब हम स्टेप पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन आपको ये पता चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग के बाद हम उनको फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक है, उसकी बेस्ड पे हम डायग्नोज करते हैं ऑल द डिटेल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई एज यू कैन सी इन दिस चार्ट। These charts are very important, ये आगे भी आपके काम आएंगे, तो if you will be writing this on your book, it is very useful for you. इसका चिट बना लो बेशक, और ग्राम बैक्टीरियोलॉजी के स्टार्ट में आप बेशक पेस्ट करो। This is the catalyst test. This is how it is performed. You can see. I will not go into details because अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। जब आप बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं, उस बेस पे ये बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटलिस्ट की मैं एक मिसाल दे देती हूँ, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स, कि कैटलिस्ट जो है वो एक एंजाइम है जो स्टेफिलोकोका के अंदर प्रेजेंट होता है इनबिल्ट फ्रॉम गॉड। जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बैक्टीरिया स्टेफिलोकोका की कॉलोनी को डालें तो दे प्रोड्यूस बबल्स, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन सेपरेट वो कर देते हैं थ्रू कैटलाइजेशन, दिस कैटलिस्ट एंजाइम, और वाटर सेपरेट हो जाए। तो दिस टेस्ट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन दैट जो भी बैक्टीरिया ये है उसके पास कैटलिस्ट ऑलरेडी है। तो जितने स्टेफिलोकोका हैं उनके पास कैटलिस्ट ऑलरेडी होता है इन देयर बॉडी। सो व्हाट विल हैपन इज कि हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोका नहीं है जो भी हमें ग्राम पॉजिटिव कोका नजर आए हैं, दे आर स्टेफिलोकोका। आगे फिर स्टेफिलोकोका को हमने अपने कैसे ग्रुपिंग करनी है, उसके लिए कोएगुलेशन टेस्ट, कोएगुलेज टेस्ट, वो भी उसकी इनबिल्ट क्वालिटी भी है कि उसके अंदर कोएगुलेज ऑलरेडी मौजूद होती है। इसी तरह जब आप कोई भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे, चाहे वो ग्राम नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, कुछ चीजें उनकी इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में,
उन्हीं की बेसिस पे हम ये बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक चार्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स। इसमें हम क्या करते हैं, उनकी मोटिलिटी देख सकते हैं, उनकी कैप्सुलेशन देख सकते हैं, उनके अंदर सिट्रेट डिफरेंट केमिकल्स हैं, सिट्रेट हो गया, यूरिएज हो गया, उसके बाद आपका इंडोल हो गया, वीपी टेस्ट हो गया। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट जो कि हम देखते होते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोज अ केस। इसके दो मेथड हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए स्पेशली, कि आप एक तो डायरेक्ट बायोकेमिकल टेस्ट लगाएं कन्वेंशनल मेथड से इन योर लैब, और देयर इज अ किट, एपीआई किट, जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने ये सैंपल्स डाले होते हैं। आपने सिर्फ जब ऑर्गेनिज्म डालते हैं तो इट विल शो रिएक्शन, इफ इट इज पॉजिटिव यू विल मार्क इट एज पॉजिटिव। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की कर लेते हैं इकट्ठी, देन यू विल डिफरेंशिएट कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो ये वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे अब इसमें मैं जिस आपको स्टेफिलोकोका की मैंने एग्जांपल दी है इन प्रीवियस चार्ट, इसमें मैं आपको देती हूँ एग्जांपल इक्वलाई फॉर एग्जांपल। मुझे ये पता चल गया ग्राम क्लिनिक से कल्चर के बाद कि मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म आया है फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट इज ग्राम नेगेटिव रॉड। नाउ व्हाट आई विल डू इज, और जो मैंने डिफरेंशियल लगाया उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वो लैक्टोज फर्मेंटर है या नहीं, तो दैट विल आल्सो हेल्प मी। ओके, तो एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक मुझे पता चल जाएगा, देन मुझे पता चल जाएगा बाय बायोकेमिकल्स। मैं ये पूरी चेन ऑफ बायोकेमिकल्स सेट करूंगी फॉर द ऑर्गेनिज्म। उसमें मैं देखूंगी सिट्रेट नेगेटिव है, यूरियस नेगेटिव है, इट इज मोटाइल, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, जो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन वीपी उसका नेगेटिव है, उसका एंडोल पॉजिटिव है, उसका एडोनिटोल नेगेटिव है, उसका मिथाइल रेड पॉजिटिव है, और उसका पोटेशियम साइनाइड नेगेटिव है। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज इक्वलाई। हम इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं कि हम एक एक बायोकेमिकल्स खुद बनाते हैं इन द टेस्ट ट्यूब्स एंड देन वी परफॉर्म। ये भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपका होना है बायोकेमिकल्स का, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको बस एक रफ आइडिया होना। जी जी मैम हमने ये हर बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। जी बेटा, लेकिन अभी नहीं, नॉट नाउ। अभी तो हम जनरल बैक्टीरियोलॉजी पे है ना। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरह हम एक ऑर्गेनिज्म को डायग्नोज करते हैं इन द लैब। ये चार्ट इसलिए है कि एक तो आप लोग अभी से इसको रख लें, इसको रोज देखा करें तो फिर ये याद होगा, अदरवाइज नहीं। जब हम स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे और जब हम ग्राम नेगेटिव रॉड डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हम इक्वलाई पढ़ेंगे एक दिन, उसका हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उसकी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी अल्लाह ताला ने चीजें रखी हैं जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी की डिजीज कॉज कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब इन्हीं क्वालिटीज की वजह से हम उसको यूरिएज और ये सब टेस्टिंग की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है वो डिफाइन करेंगे, और इन्हीं बेसिस पे हम उसको डायग्नोज करते हैं। जब इक्वलाई डायग्नोज हो जाता है फिर हम उसकी पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स वो हम लगाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल यूरिन का एग्जांपल आया, उसमें इक्वलाई इज द मोस्ट कॉमनली कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन यूटीआईज, तो हमें पता चल जाएगा जी ये इक्वलाई है, नॉट द अदर वन। ठीक है, इस तरह हम मोर प्रिसाइजली हम डायग्नोज एंड ट्रीट कर सकते हैं पर्टिकुलर पेशेंट। इसलिए आपको ये सारे याद करने हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास लैब में क्या सैंपल्स आ सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने डे 1 पे हम उनके साथ क्या करते हैं, हम डे 1 पे उनको कल्चर करते हैं और उनकी स्टेनिंग भी कर लेते हैं टू गेट एन आइडिया कि हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रॉड है, कोका है। फिर डे 2 पे जब हमारे पास कल्चर आ जाता है, उसमें कॉलोनीज बन जाती हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि वो जो कॉलोनीज हैं वो कौन सा ऑर्गेनिज्म, सेम वही कंफर्म करेंगे हम स्टेनिंग से कि ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रॉड है कि कोका है। फिर हम उसकी पर्टिकुलर बायोकेमिकल्स पे जाएंगे जो कि ये हैं, और वो हम लगाएंगे बायोकेमिकल सेकंड डे पे, और साथ ही हम उसकी ऑर्गेनिज्म डायग्नोसिस के बाद उसकी एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी लगा देंगे। दिस इज बेसिकली अ 3-day प्लान, और 3 days में कल्चर रिपोर्ट होता है। ब्लड कल्चर को हम 7 days देते हैं बिकॉज इट माइट टेक मोर टाइम टू ग्रो, इसलिए हम 7 days इज द लिमिटिंग टाइम। जी बेटा बताइए, एनी क्वेश्चन? अभी किसी ने हैंड रेज किया था। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन इंटरप्ट मी, ताकि आपको फ्लो में समझ आए। ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये ऐसे नहीं है कि अभी आप एक चीज ना समझ आई, बी आपको समझ नहीं आया, ए हमने कर लिया, सी डी ई पे हम पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। ए बी सी डी इट शुड बी इन फ्लो। जो लैब डायग्नोसिस है ये भी इट शुड बी इन द फ्लो। तो आपको ये ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि डे 1 पे हमने क्या किया, वी डू कल्चर। सबसे पहले कल्चर करते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन ना आए। डे 2 पे हमने क्या किया और साथ ही स्टेनिंग कर ली।
डे 2 पे हमने क्या किया, वो जो कल्चर आया है प्योर हमारे पास, उसमें से हमने ऑर्गेनिज्म को निकाला और स्क्वायर बनाया और देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोका है, बेसिला है। देन हम उसकी फर्दर जो है वो क्वालिटीज पे चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डिफरेंशियल होती हैं डायग्नोसिस वाली प्लेट्स, जैसे की और ग्लैड, उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि लैक्टोस्पर्मेटिस कौन सी है, नॉन लैक्टोस्पर्मेटिस कौन सी है। ये भी सारी ग्रुपिंग हम जो है वो जब स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी करेंगे तब डिटेल में करेंगे। आपको बस ये बताना चाहिए कि डे 1 पे हमने क्या किया, डे 2 पे हमने बायोकेमिकल्स लगा देने हैं एंड हमने डायग्नोज कर लेना है ऑर्गेनिज्म को और हमने उसको लगा देना है फॉर एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी। जब भी आपने कोई बैक्टीरिया रिपोर्ट करना होता है एंड इट इज अ पॉजिटिव कल्चर रिपोर्ट, तो आपने उसकी एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी जरूर देनी है, अदरवाइज इट इज यूजलेस। सिर्फ ये जानना कि इक्वलाई है तो इट इज यूजलेस, बिकॉज इक्वलाई की आगे से बहुत सारे वेरिएंट्स एंड यूजुअली इट इज लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि एक इक्वलाई जो जो ऑर्गेनिजम्स को जो जो एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव हो वो बाकी दूसरे इक्वलाई भी हों। तो आपका जो बैक्टीरियोलॉजी का कल्चर रिपोर्टिंग है, इट इज नॉट कंप्लीटेड until you give a complete antimicrobial picture as well, sensitivity report, कि कौन सी एंटीबायोटिक्स को आपका जो जो इक्वलाई आपने डायग्नोस किया है वो कौन सी एंटीबॉडीज को एंटीमाइक्रोबियल्स को सेंसिटिव है और कैंसर रेजिस्टेंट है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि रेजिस्टेंस और सेंसिटिव का होने का क्या मतलब है बच्चों? डू यू हैव एनी आइडिया? एक्सक्यूज मी, सो गए हो सारे? नो 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 मैम, हम जाग रहे हैं। ये नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको ये आइडिया है जब मैं ये बात कर रही हूँ, जब मैं ये स्टेटमेंट यूज करती हूँ कि एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिव है या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, इसका मतलब समझ आता है आपको? यस मैम। ये जो माठा सा यस मैम है ना, इससे बात नहीं चलेगी। हम मुझे आई नीड अ पावरफुल आंसर। आता है मैम, आता है कि वो Okay. उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए इन इफेक्ट, मतलब वो Yes, एंटी माइक्रोबियल बिल्कुल एजेंट ठीक। के लिए ineffective। मैंने नोट किया कि बहुत कम बच्चे हैं जो वाकई क्लास में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और आंसर करके। दिस शुड बी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, चेंज होना चाहिए, और लोग भी बोलें, तभी आपको मजा आएगा और पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी। इट शुड बी बायलैटरल इंटरेक्शन। ओके, देन आपको मैंने बताया कि ये हमने डे 2 पे जो है वो हमने ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर लिया, साथ हमने उसकी एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी लगा दी। थर्ड डे पे हम क्या करेंगे, ये वो बायोकेमिकल्स हैं डिफरेंट, ये हम सारे डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग पिक्चर्स देख लो ताकि आपको जरा इंटरेस्ट पैदा हो। ये वो बायोकेमिकल्स है जो ग्राम नेगेटिव के लिए हम लगाते हैं। इंडोल इसमें आ जाता है, इसमें वीपी आ जाता है, इसमें मिथाइल आ जाता है, ये भी वीपी का डिफरेंट वो है कॉन्टेक्ट। और उसमें आ जाता है आपका यूरिएज टेस्ट आ जाता है, आपका सिट्रेट आ जाता है। दिस सिट्रेट इज माय फेवरेट। ठीक है, ओके। तो ये सारे हम डिटेल में करेंगे बायोकेमिकल्स वन बाय वन विद द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज जब हम बायोकेमिकल्स का प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह जब हम लैब में आओगे, और हम ये परफॉर्म भी करेंगे। ओके, तो थर्ड डे पे हमने, सेकेंड डे पे हमने कर लिया, मैंने आपको बताना। ओके, डे 3 पे हमने क्या करना है, आफ्टर दिस बायोकेमिकल्स हमने उससे लगा दिए सेकेंड डे पे। डे 3 पे बस आप सेंसिटिविटी प्लेट रीड करते हैं और आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, दैट्स ऑल। एंड थर्ड डे पे ही आपका जो रिपोर्ट है वो आपके पेशेंट के पास चली जानी चाहिए, अप्रूव हो। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि कैसे आप बैक्टीरियोलॉजिकली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं इन द लैब। हाउ व्हाट इज द लैब डायग्नोसिस ऑफ अ बैक्टीरिया इज डन ऑन बेसिस ऑफ 3 days, and on the third day means its result, so it basis of 2 days after getting the specimen in your lab। कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमें जरूरी है इन ऑर्डर टू रिसीव द सैंपल। आपका सैंपल कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियाज आर ऑलवेज एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका स्पेसिमेन है शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड, और उसकी प्योरिटी के लिए आपको ब्लड सैंपल टेकिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं दे आर ट्रेन फॉर इट, और जब भी पेशेंट को आपने गाइड करना है और देनी है चीज कि किस तरह सैंपल कलेक्ट करना है, तो आपने पूरा उनको प्रिसाइज एक्सप्लेन करना होता है। अब हम आपको बताते हैं वन बाय वन वी विल सी के हमने किस तरह से ब्लड कल्चर्स और डिफरेंट चीजें जो है अडॉप्ट करनी होती है। सबसे पहले वी विल डिस्कस ब्लड कल्चर। ये क्यों परफॉर्म करते हैं हम, फॉर सेप्सिस, अगर सेप्सिस हो जाए, और एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया। ये उन सारी और इन्फेक्शंस के लिए होता है जो कि सेप्सिस में रिजल्ट करें। और सेप्सिस क्या है, या सेप्सिस क्या है,
basically कि bacteria is in your body now, in fluid of your body, that is blood, main fluid of your body, that is blood. And then वो क्या करते हैं, there is growth of the bacteria directly inside the organism, not in the organism but in your fluid, that is blood. और वो जिस पर्टिकुलर भी जगह की इन्फेक्शन हुई है, लाइक एंडोकार्डाइटिस में, एंडोकार्डियम में है, या ऑस्टियोमाइलाइटिस में बोन्स में है, या निमोनिया में लंग्स में है, वो अब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इट इज गेटिंग इनटू योर ब्लड, और वो उसने आपको प्रॉपर्ली सेप्टिक कर दिया है, सेप्सिस में डाल दिया है आपको। तब इन सब केसेस में आपको ब्लड कल्चर लेना पड़ता है। उसके अलावा सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी जब टाइफाइड करता है, टाइफाइड फीवर में भी आपको ब्लड कल्चर करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ब्लड कल्चर से आइसोलेट होते हैं, वो स्टेफ ऑरियस है जो स्किन इन्फेक्शन करता है बहुत कॉमनली। आप स्ट्रेप्टोकोका निमोनिया है जो कि लंग से थ्रू आ गया। इकोलाई, क्लेब्सियला एंड सूडोमोनास, ये डायरेक्ट अगर ब्लड में इंटरप्ट हो जाएं, अपने नॉर्मल फ्लोरा से निकल के आपके ब्लड में चले जाएं, तो दे कैन कॉज सेप्सिस, और उसके लिए आपको ब्लड कल्चर लेना पड़ता है। ये जो बॉटल्स आपको नजर आ रही हैं, ये स्पेशल ब्लड कल्चर बॉटल्स हैं, और इनके अंदर आप क्या करते हो, यू टेक 5 cc और 3 cc। बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए 5 cc लेते हैं हम ब्लड, और छोटे बच्चों के लिए हम 3 cc लेते हैं। एंड वी टेक इट इन सिरिंज, जिस तरह आप नॉर्मल ब्लड सैंपल लेते हो, ऐसे ब्लड लेके इन बॉटल्स में डाल देते हैं। एंड देन दीज बॉटल्स आर रेफर टू यू। ये जहाँ पे भी आपका पेशेंट, यूजुअली ब्लड कल्चर जो है वो उन पेशेंट्स को होता है जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, या टाइफाइड के सिलसिले में अगर आएंगे तो पेशेंट खुद आएगा आपके पास, तो आपने 5 cc लेके इन बॉटल्स में डाल देना है, एंड देन यू विल इंक्यूबेट देम फॉर 7 days। 7 days में ब्लड कल्चर जब आप डाल देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप day 1 पे कल्चर लगा के कल्चर लगाएंगे, जैसे नॉर्मल बाकी स्पेसिमेंस का लगाना है हमने। देन day 3 उस पर अगर ग्रोथ आ जाती है तो वेल एंड गुड, यू विल रिपोर्ट। अगर नहीं आती तो यू विल कीप इट इन द इंक्यूबेटर, एंड देन ऑन day 5 यू विल अगेन डू इट। आप दोबारा इसका एक लोगे ड्रॉप, एंड यू विल पुट कल्चर ऑन द ब्लड कल्चर प्लेट, and then you will see whether growth is there or not. Then on day 7 final report you will give कि क्या उन 7 days में organism grow किया है कि नहीं। If the organism is in good quantity of infectious dose, कि वो infection करे और या sepsis करे in the body of this particular patient, तो फिर तो वो grow कर जाएगा। Otherwise you will report it as negative, but after 7 days, before 7 days you cannot report blood culture negative। ये मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया आपको, स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोका है, निमोनी है, इकोलाई, क्लेब्सियला, जो हम ब्लड कल्चर से निकालते हैं। और ब्लड कल्चर करेंगे कब के इन पेशेंट्स में, टाइफाइड में कर सकते हैं, सेप्सिस ड्यू टू एंडोकार्डाइटिस में कर सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस में कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस में कर सकते हैं, निमोनिया के पेशेंट्स में कर सकते हैं, whenever the particular doctor will recommend it। I hope it is clear। blood culture is different from the other specimens because इसमें आपने 7 days का टाइम रखा है, बाकी सब जो है वो 3 days का टाइम है, और 3rd day पे कल्चर रिपोर्ट हो जाना चाहिए, मैंने आपको बताया। थ्रोट कल्चर कैसे लेंगे, ये एक स्वैब स्टिक है। आई होप मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस बिफोर, अगर नहीं तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, लैब में हम देख सकते हैं। आप सिंपल स्वैब लेते हैं, एंड देन यू एंटर द माउथ, एंड देन यू विल टच द पोस्ट फेरेंजियल वॉल ऑफ द पेशेंट, और थ्रोट से आप अच्छी तरह उसको मूव आउट करते हैं क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉक, एंड देन यू विल टेक इट आउट एंड पुट इट इन बैग, उसको लेबल करके हम लैब में भिजवा देंगे। अगर हम खुद ले रहे हैं तो डायरेक्टली हम लेके अपने पास ही रख लेंगे। इसमें भी जितनी भी स्पेसिमेंस हम लेते हैं उसमें प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द बॉटल या स्वैब स्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पेशेंट का नाम, उसकी एज एंड द डेट ऑन विच यू आर डूइंग दिस सैंपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको सैंपल प्रोवाइड कर रहा है, आपने उसको कहना है कि ये सारी बेसिक नीड्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट गिव अ परफेक्ट और 100% प्योर रिपोर्टिंग, अदरवाइज मिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स एक टाइम पे रन हो रहे थे। ये प्रॉपर लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोट कल्चर में क्या वो कम करते हैं, इज यूजुअली यूज्ड व्हेन देयर इज बीटा हेमोलिटिकल या स्ट्रेप्टोकोकल पैंजिनीज या स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो जाता है। फॉर दैट पर्पस यू विल गो फॉर थ्रोट कल्चर, एंड इवन इन टॉन्सिलाइटिस सम पीपल प्रेफर टू हैव अ थ्रोट कल्चर बिकॉज सेम ऑर्गेनिजम्स डू टॉन्सिलाइटिस। और उसके अलावा डिप्थीरिया, गोनोकोकल फेरेंजाइटिस एंड कैंडिडल थ्रश, ये सारे डिजीजेज हैं जो कि थ्रोट कल्चर, थ्रोट इन्फेक्शंस करती हैं। ये सारी जो रिजल्ट इन थ्रोट पेन या थ्रोट इन्फेक्शन करेंगी, एंड यू हैव टू रूल आउट वन बाय वन ऑल ऑफ दीज कि कौन सी इनमें से डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से आपको थ्रोट की इन्फेक्शन हुई है, और उसके लिए जानने के लिए आपको थ्रोट कल्चर चाहिए। दैट इज डन बाय द कल्चर स्वैब, और ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये कैसा होता है कल्चर स्वैब।
देन कम द स्प्यूटम। स्प्यूटम के लिए एक प्रॉपर जार होता है एंड इट इज कंटेनर एंड स्टरलाइज्ड कंटेनर, ये आप पेशेंट को दे देते हैं। एंड व्हाई यू विल डू इज फॉर निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट लाइकली। और जब स्प्यूटम प्रोड्यूस कर रहा हो पेशेंट जिस कंडीशन में, जिन जिन लंग इन्फेक्शन में, उन सारे में ये आपने यूज करनी है दिस वन स्प्यूटम जार। और आप पेशेंट को गाइड क्या करोगे कि आपने अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना है एंड इट शुड नॉट बी स्लाइवा। आज भी इतना बताने के बाद भी कई लोग यही करते हैं कि आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो उनको कंफ्यूजन होती है, लेमैन होते हैं, दे डोंट नो कि आपने अच्छी तरह खांसी करके एंड देन वो जो स्प्यूटम प्रोड्यूस किया है वो भेजना है, नॉट योर स्लाइवा। स्लाइवा इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर माउथ, यू डोंट नीड इट। स्लाइवा में कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, कोई बैक्टीरिया को कुछ नजर नहीं आएगा। Sputum is the main thing which you will guide you whether this is tuberculosis or pneumonia or and with which particular organism this pneumonia is happening। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? स्ट्रेप निमोनिया हो सकता है, स्ट्रेप ऑरियस हो सकता है, क्लेप्सियल्ला हो सकता है, सुडोमोनास हो सकता है। ये सारे जो हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनियाज हैं। और कम्युनिटी एक्वायर्ड में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है। तो फिर ये आप these all organisms can be present in the sputum culture। और जो गाइड करना है आपने अपने पेशेंट को फॉर सैंपल टेकिंग, वो मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइनल फ्लूइड कल्चर। अब वो सीएसएफ का कल्चर हम कैसे लेते हैं? यूजुअली हम नहीं लेते, ये आपका जो सर्जन है या जो भी आपका क्लिनिशियन है, ही विल टेक द सीएसएफ फॉर यू एंड देन ही विल सेंड इट टू यू। अब कौन पेशेंट्स हैं? जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, देन छोटे बच्चे जिनमें वीपी शंटिंग होती है या अदर जो है ब्रेन शंटिंग होती है, मेनिंजियल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनिंजाइटिस छोटे न्यूबॉर्न में भी एज वेल एज बड़ों में भी जो गर्दन तोड़ बुखार होता है, उसमें इन सब के लिए हम L3 L4 पे पंक्चर करते हैं एंड यू टेक द फ्लूइड आउट। अब ये फ्लूइड जो है वो कई लोग जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा वो ये है कि स्टेरिलाइज्ड सिरिंज में जिसमें हम लेते हैं उसी में लेबल करके दे सेंड इट टू अस। लेकिन कुछ प्रॉपर जगहों पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे नाउ दे आर हैविंग अ प्रॉपर स्टेराइल कंटेनर्स, जो इस तरह सिरिंज लाइक कंटेनर्स होते हैं, इनमें सीएसएफ को डालते हैं, शिफ्ट करते हैं एंड देन दे लेबल इट एंड सेंड इट टू यू फॉर द कल्चर। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। अगर आपको ये नाम अभी कोई एक ध्यान में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी रहे तो कोई मसला नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल सीएसएफ कल्चर जो है वो हम कैसे, क्या स्पेसिमेन आएगा और वो हम कैसे लेना चाहिए। हमें टोटली स्टेराइल होना चाहिए और उसके अलावा किस तरह हम कल्चर लेके स्पेसिमेन लेके हमारे तक सेंड किया जाता है। इनको हम लगाते हैं चॉकलेट एगर पे, ब्लड एगर पे, और चॉकलेट एगर विद 5 and 10 फैक्टर एच इन्फ्लुएंजा को एनहांस करने के लिए। ये सारी चीजें जब हम एच से पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ये तरह पता होना चाहिए इस स्लाइड से कि स्पाइनल फ्लूइड हम कल्चर खुद नहीं लेते, पर्टिकुलर डॉक्टर, स्पेसिफिक डॉक्टर, स्पेशली एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो ये सीएसएफ फ्लूइड लेते हैं, या मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि ये स्पेसिमेन लेते हैं और फिर हमें सेंड कर देते हैं एंड वी विल रिसीव इट एज स्टेरिलाइज्ड in a sterilized bottle or syringe you should make, otherwise you will not accept this sample in the lab। अगर कोई भी सैंपल आपको इन सब प्रॉपर उसके साथ लेबलिंग और प्रॉपर हिस्ट्री के साथ ना मिले, यू हैव टू रिफ्यूज इट, अदरवाइज आपकी डायग्नोसिस पे फर्क पड़ेगा। Stool culture is performed for enterocolitis mostly, Salmonella, Shigella, Campylobacter, then cholera। ये सारी डिजीज हैं जिनमें हम स्टूल कल्चर करवाते हैं, बच्चों में भी कराते हैं, बड़ों में भी कराते हैं। ये स्पेसिफिक स्पेसिमेन बॉटल है। Some people use this one, इसमें स्कूपिंग होती है so that you can easily scoop out the stool, the quantity which you want in order to diagnose the case। Otherwise simple jar, जो sterilized jar मैंने आपको स्पूटम के लिए दिखाया है, ऐसे ही sterilized jar होते हैं for stool culture as well, तो उनमें भी हम डाल सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। और इसमें भी सेम अपने पेशेंट को बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू क्लीन द एरिया एंड देन ही विल गिव द सैंपल एंड सेंड इट टू यू एंड इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद यूरिन। ये स्पेसिफिक स्टूल कल्चर में आपने अपने पेशेंट को या क्लाइंट को बताना होता है कि आपने किस सैंपल लेना है। इसके कल्चर के लिए मेकॉन की और यूसिन ब्लू AMD अगर यूज होती है, ये भी डिफरेंशियल है बिकॉज मैंने आपको बताया कि ग्राम नेगेटिव रॉड निकलेंगे यूजली स्टूल में से, गट के जो है क्योंकि वो गट में रेजिडेंट है, तो उनमें से आपने उनको डिफरेंशिएट करना है लैक्टोज और नॉन लैक्टोज में, तो इसलिए मेकॉन की अगर जरूर लगाते हैं इनमें। खैर इसकी भी डिटेल अभी आपको नहीं पता चाहिए क्योंकि जब हम जो ऑर्गेनिज्म करेंगे वो इस स्लाइड में से आपको ये बताना चाहिए कि सैंपल कहाँ आएगा और किस तरह से आपने उसको लेना है, इन विच जार सैंपल, क्या आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है योर पेशेंट। देन कम्स द यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में भी यही चीज है इंपॉर्टेंट कि डिस्पोजेबल यूरिन कल्चर्स होते हैं, स्टेरिलाइज्ड होते हैं, जार्स होते हैं, कंटेनर्स,
और ये सिस्टाइटिस पेरिनेफ्राइटिस जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सिंपल यूटीआई यूथराइटिस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप ये रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को। फिर पेशेंट क्या करता है, वो आपसे जार लेके जाता है लैब से, रजिस्टर करवाता है अपने आप को और जार लेता है। अब आपने उसको बताना है कि जब सैंपल आपने देना है यूरिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी देयर। आपने ना फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन को डिस्कार्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश द एरिया, देन यू विल टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन डिस्कार्डेड, मिडिल पार्ट आपने कंटेनर में सेव करना है, एंड द लास्ट पार्ट भी डिस्कार्ड कर देना। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो मिडिल स्ट्रीम होती है उसमें मेन कंटेंट होता है यूरिन का हर लिहाज से, चाहे आपने इसका कल्चर लगाना है, चाहे आपने इसकी केमिस्ट्री देखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिड स्ट्रीम यूरिन है, इट इज हाईली efficient for the bacteria to have in it, and very efficient for having maximum quantity of the all the other chemical associations जितनी भी उसकी characteristics है वो mid stream urine में more pronounced होती है। And you have to take the sample after cleaning your genitals because this is very important। हमें localized जो flora है वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ urine का चाहिए। urine और कुछ जो आपके specimens है they are sterile by God। Blood, there is no bacteria otherwise other than if there is bacteria infection, and in urine there is no bacteria other than the one who is causing infection। Urine is a sterile secretion of your body। Similarly CS, there is no bacteria in CSF in normal CS। तो जब भी होगा ये एक organism होगा and that will give you the right picture of the infectious organism which is causing that particular disease। तो इसमें आपको ये बात बतानी चाहिए कि जब भी यूरिन में, ब्लड में या CSF में मोर देन वन ऑर्गेनिज्म हो, हम उसको कंटेमिनेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेरिलाइज्ड सिक्रीशंस हमारी बॉडी की, और इनमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे इन्फेक्शन कर सकता है बाय गॉड। इसलिए ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने इन सब सिक्रीशंस को दी है कि आप इजीली डिफाइन कर सकें कि कहीं कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हुई। तो इन सब तीनों चीजों में आपको ये पता होना चाहिए। यूरिन कल्चर के हवाले से आपको ये बात पता चाहिए कि जब भी आप प्लेट देखें उस पर मोर देन 100 कॉलोनीज होनी चाहिए इन पर्टिकुलर। अगर 100 कॉलोनीज होंगी देन इट बी सेड कि ये ऑथेंटिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। If there is less than 100 colonies, you will not report this urine culture। 100 colonies का मतलब ये होता है कि each colony में 1 लाख organisms हैं almost वो that particular। For example, E. coli की बात मैं कर रही हूँ कि हमने कल्चर लगाया, उसमें आपने कल्चर लगाया, कल्चर प्लेट पे कॉलोनीज आई, वो 100 कॉलोनी से ज्यादा है, बहुत सारी भरी हुई है प्लेट्स। So that means more than that means that this is the true organism and this is the main infection causing organism and there is UTI in that particular patient, बैक्टीरियल UTI। लेकिन अगर लेस देन 1 कॉलोनी होगी, लेस देन 100 कॉलोनीज होंगी, इट मींस कि उसका नंबर कम हो गया। तो उसका जब आपका यूरिनरी बैक्टीरियल लोड जो है वो कम है, that doesn't mean that means कि that is not infection by that particular bacteria। तो इसलिए हम उसको रिपोर्ट नहीं करते। आप ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे यूरिन पार्ट, उसमें ये डिटेल लिखी हुई है। वह जब भी हम ऑर्गेनिज्म कॉलोनी लेते हैं तो 1 माइक्रो, जब हम यूरिन लेते हैं तो हम जो वाइल्ड लूप यूज करते हैं उसका सर्कल जो है वो 1 माइक्रोलीटर के बराबर, यानी उसमें आप 1 माइक्रोलीटर लेके यूरिन का उसकी कल्चर लगाते हैं ऑन द कल्चर प्लेट। 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 100। अगर 1 माइक्रोलीटर से कॉलोनीज बनी है, दैट मींस ईच कॉलोनी कंटेन 1 लाख बैक्टीरिया इन इट। तो 1 लाख बैक्टीरिया इनटू 100 इज द फिक्स अमाउंट जो कि आपको चाहिए फॉर अ ट्रू पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर इससे कम होगा इट मींस के दैट इज नॉट एन ऑथेंटिकेटेड बैक्टीरिया व्हिच इज कॉजिंग द इन्फेक्शन। तो ये कुछ चीजें यूरिनरी कल्चर में रिपोर्ट करने के लिए जरूरी है। जब तक 100 कॉलोनी से ज्यादा नहीं नजर आएंगी मुझे प्लेट पे, मैं उसको आगे प्रोसेस नहीं करूँगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जेनिटल यूरिन ट्रैक्ट, ये भी डिस्चार्ज। जी जी मैम, आपने बताया था कि यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता बैक्टीरिया, नॉर्मल यूरिन तो में नहीं less होता। हाँ, यूरिन में नॉर्मल नहीं होता। तो अगर लेस देन 100 कॉलोनीज होंगी तो बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है ना, नहीं तो वो नहीं, इन्फेक्शन क्यों नहीं कॉज no करेगा? no 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 no, that means you are contaminating it, you have contaminated, the patient is contaminated, has contaminated it। जब भी एक ऑर्गेनिज्म 100 कॉलोनीज बनाने के काबिल होगा और वो एक ही होगा, यानी कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म ना हो, सिंगल ग्रोथ होनी चाहिए, एक ही ऑर्गेनिज्म होगा,
दैट मीन्स कि ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज इन्फेक्शन इन योर यूरिन। अदरवाइज आपको पता है यूरिन स्टरलाइज होता है, ठीक है। 100 कॉलोनी होने का मतलब ये है कि ईच कॉलोनी में 1 लाख बैक्टीरियाज हैं। 1 lakh into 100, this is the amount which is required to cause infection in the urine। चाहे वो किसी भी पार्ट पे हो, चाहे वो यूरेथ्रा में है, चाहे वो आपके ब्लैडर में है, चाहे वो ऊपर चला जाएगा तो फिर तो खैर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। यूजुअली नीचे से यूरेथ्रा से ही आपकी इन्फेक्शन स्टार्ट होती है और बैक्टीरिया भी वहीं से आता है। तो इसलिए यूजुअली अनलेस अनटिल अदरवाइज इन वेरी रेयर केसेस कि ब्लड से आपके यूरिन में इन्फेक्शन हुई हो, ये यानी किडनी में इन्फेक्शन हुई हो एंड देन वो आपके प्रोसेस हुआ हो, जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो वो आपके ब्लड से आता है, वो दैट इज अ डिफरेंट पाथवे। नॉर्मल यूटीआई की जब मैं बात करती हूँ वो नीचे से ऊपर जाता है, जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो वो 100 से भी क्रॉस कर जाते हैं, बहुत कॉलोनीज होती हैं तब की तो इनफैक्ट बात ही नहीं है। मेनली ये यूरेथ्राइटिस जब होता है ना तब उस वक्त ये हमने लिए बहुत जरूरी है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या ये ऑर्गेनिज्म लोकलाइज्ड हमने कंटामिनेशन से डाल दी है या वाकई वहाँ पे है और कॉलोनीज में की है तो फिर इन्फेक्शन कॉज की है। तो इसलिए ये कुछ टिकी पॉइंट्स हैं जो यूरिन कल्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बाकी अब ये बात हम बार बार करेंगे तो आपको याद भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो यूरिन कल्चर में कि स्पेसिमेन कैसे उसने लेना है, अच्छी तरह वॉश आउट करके मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। दूसरी बात आप ये याद रखो कि जो हम एक वाइल्ड लूप यूरिन का लेते हैं वो 10 माइक्रोलीटर ऑफ होती है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो 1 माइक्रोलीटर होता है सॉरी उसमें के अंदर, और हमने ऑर्गेनिजम्स कितने मिलते हैं 1 कॉलोनी के अंदर 100 माइक्रोलीटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 10 माइक्रोलीटर इन 1 वाइल्ड लूप ऑफ यूरिन एंड देन दैट इज कॉजिंग द कॉलोनीज, और कॉलोनीज में से एक कॉलोनी के अंदर आपकी 1 लाख ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मिनिमम वो क्वांटिटी है, इन्फेक्शियस डोज है बैक्टीरिया की जो की जरूरत है आपको इन ऑर्डर टू कॉज अ ट्रू यूटीआई इन्फेक्शन। ये बात समझ लगी आपको? ये आपकी बेटा बुक में भी है, आप जब रीड आउट करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट इट हम कल इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें आपको क्या होगा, देयर इज डिस्चार्ज इन यूजुअली इफ इट इज डिस्चार्ज फ्रॉम योर पेनाइल एरिया और योर वजाइनल एरिया तो आप उसके लिए हाई वजाइनल स्वाब्स लेते हैं। ये भी सेम ऐसी है जैसे मैंने आपको स्वैब स्टिक दिखाई थी, वही हम लेते हैं फॉर पस कहीं से भी आ रही हो आप उससे लेते हैं। अगर तो वजाइनल है या यूट्राइन है तो वो गायनाकोलॉजिस्ट आपकी खुद लेगी, सैंपल लेके हमारे पास भेजेगी। इफ इट इज लोकलाइज तो वो भी आपकी यूजुअली गायनाकोलॉजिस्ट ही लेके भेजेगी, मेल और फीमेल दोनों की। एंड उसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरियाज है वो डिफरेंट हो सकते हैं। कैनेडा इज वेरी कॉमन, नेसीरिया गोनोरी हो सकता है, और हम इसको थायमार्टिन चॉकलेट अगर भी जरूर लगाते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोज द केस ऑफ नेसीरिया। देन इम्यूनोलॉजिकल सेकंड पार्ट जो है वो हमारा इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोसिस है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा टाइम भी अब होने वाला है, लेकिन मेनली क्या होता है कि आप इसमें कैप्सुलर स्वेलिंग इसमें आ जाती है, दैट इज स्वेलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि आप जब एंटीसीडा डालते हैं उस ब्लड में तो क्या होता है कैप्सूल स्वेल कर जाता है। अगर स्वेल किया है दैट मीन्स कि आपने जो सीरा दिया था वो बिल्कुल ठीक था, वो इसी ऑर्गेनिज्म का था एंटीसीडा, और आप उसको डायग्नोज करते हैं एज स्वेलिंग ये क्वेलिंग्स रिएक्शन, ठीक है। डिड यू गेट दिस? जो आपके कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज हैं वो ऐसे होते हैं, जब उनके अंदर आप एंटीसीडा ऐड करेंगे तो उनका कैप्सूल स्वेल कर जाएगा क्योंकि वो रिएक्शन करेगा टू द सीरम जो हमने डाला है। फॉर एग्जांपल कैप्सुलेटेड कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टेफ ये स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, दैट इज अ इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। उसमें हम जब एंटीसीडा डालेंगे उसका उसी स्पेसिमेन में, स्पेसिमेन लेंगे स्लाइड पे उस पर एंटीसीडा डालेंगे, फिर जब हम उसकी स्लाइड बनाएंगे तो उसका आपने ये स्वेलिंग देखेंगे इन योर कैप्सूल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड क्वेलिंग्स रिएक्शन, और ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है क्योंकि हम एंटीसीडा यूज कर रहे हैं। देन स्लाइड एक्यूटिनेशन मेथड होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम एंटीजन सेल वॉल ओ एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं ऑन द स्लाइड। एक स्लाइड पे आपने एक एक सीरम डाल दिया, उस दोनों में एक कंट्रोल होगा और एक टेस्ट होगा। फिर हमने एंटी सीरम डाला ओ एंटीजन वॉल का, मैंने आपको बताया था सेल वॉल में ओ एंटीजन होते हैं, और कौन से होते हैं एफ एंटीजन होते हैं, और कौन से होते हैं ए एंटीजन हो सकते हैं। इन एंटीजन्स के अगेंस्ट हमें सीरम मिल जाते हैं इन द लैब, जो हम ये यूज करते हैं एंटी सीराज यूज करते हैं फॉर सीइंग दैट ये एग्लूटिनेशन मेथड हुआ कि नहीं।
हम एक ड्रॉप डालेंगे ब्लड में से सीरम एक्सट्रैक्ट करके, फिर हम उसमें एंटी सीरा डालेंगे इस वॉल एंटीजन का। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो फिर इस तरह से एग्लूटिनेशन होगी। दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन मेथड। हम जब सैल्मोनेला टाइफी के लिए विडॉल टेस्ट करते थे, उसमें हम ये सब डायरेक्ट हम ये स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड से भी एंटी सीरा चेक कर सकते हैं और हम विडॉल टेस्ट भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी कि जो सैल्मोनेला है वो कौन सी वाली सेल वॉल है, उसके बाद वो ओ एंटीजन वाले हैं या एफ एंटीजन वाले हैं या आई एंटीजन वाले हैं। उनकी पर्टिकुलर आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन या डायग्नोसिस के लिए हम स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड चेक करते हैं। लेटेस्ट एग्लूटिनेशन मेथड क्या होता है, ये सेम होता है। इसमें आप डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी नहीं चेक करते, कुछ एंटीबॉडीज के ऊपर स्पेसिफिक लेटेक्स मटेरियल ऐड कर देते हैं और फिर हम उसको चेक करते हैं इन द सीरम कि क्या ये वाली जो एंटीबॉडीज है उनके ऊपर एंटीजन आके लगेगा कि नहीं, एंड देन यू विल फाइंड आउट द एग्लूटिनेशन मेथड। अभी सिर्फ आपको इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के नाम आने चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपको डिटेल इनकी नहीं बतानी चाहिए। आपने स्लाइड एग्लूटिनेशन में क्या चेक किया, डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडीज चेक की किसी भी एंटी सीरा के खिलाफ। अब हमने इसमें क्या चेक किया कि वो जो लेटेक्स कोडेड बीड्स कोडेड जो लेटेक्स बीड्स कोडेड हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो एग्लूटिनेट हुई हैं कि नहीं हुई विद द एंटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट जो भी हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पिक्चर है वो CRP की है, ये भी एक केमिकल है जो आपकी बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो आप इसको CRP की बजाय बैक्टीरियल वॉल समझ लें, सेल वॉल की नहीं, वो सीरम समझ लें, सीरम एंटीजन समझ लें। दिस विल complexes will be found. If these complexes are there, then you will say कि that is agglutination test is positive. इसमें भी इसी तरह से agglutination है। Then ELISA में क्या होता है, उसमें 4 चीजें आपको चाहिए। एक कैप्चर्ड एंटीबॉडी चाहिए, फिर टारगेट एंटीजन चाहिए, फिर एंजाइम लिंक्ड लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडीज चाहिए और फिर सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट से क्या होगा, वो डायग्नोज करेगा कि वेदर द कॉम्प्लेक्स इज फाउंड और नॉट, और ये बना है कि नहीं बना। ये सिंपल जो एक हमारा एग्लूटिनेशन मेथड है जो एंटीजन एंटीबॉडी की, उसकी आगे से इम्प्रूव्ड फॉर्म है कि वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन इज लोकेटेड एंड फाइंड। ये और प्रिसाइज है, स्पेसिफिक है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ये भी सेम वही है, सिर्फ इसमें हम एंटीबॉडी के साथ वो जो लेटेक्स डाले थे हमने बीड्स, उसकी बजाय हम डाल देते हैं फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स लगाए होते हैं इस तरह से। ये देखो, ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये फ्लोरेसेंट डाई लेबल्ड होती हैं। Where is my arrow? This one. ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं ना, ये फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज हैं, ये फ्लोरेसेंट पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं। जब आप इनको अंडर फ्लोरेसेंस लाइट देखेंगे तो दे विल ग्लो, दे विल शाइन इन द डिफरेंट मेथड। तो जब ये ग्लो आती है तो आपको पता होता है कि पर्टिकुलर ये फॉर एग्जांपल आपने किसी भी सैल्मोनेला के लिए किया तो आप, या ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशली आपने किया तो आप कहेंगे ये ट्यूबरकुलोसिस ही है। अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोई और होता है, एवीएम होता है वो, तो उसमें ये फ्लोरेसेंट ना स्पार्कल करती, बिकॉज ये स्पेसिफिकली फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, नॉट फॉर द अदर टाइप्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम। तो ये फ्लोरेसेंट मेथड टेक्निक से यूज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही है कि हाउ यू डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी टुगेदर। देन कुछ न्यूक्लिक एसिड जैसे है, आजकल तो इनका बहुत दौर है, लाइक PCR आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि आप पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है उसकी आगे से प्योरिफिकेशन करते हैं और मेन ऑर्गेनिज्म से उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं एंड देन उसकी वॉशिंग करते हैं एंड देन उसको हम एम्प्लीफाइड करते हैं, उसकी कॉपीज बना लेते हैं बहुत ज्यादा, 1 से 10, 10 से 12, 12 से 14 इस तरह कॉपीज बना लेते हैं। आप डिटेक्ट करते हैं कि सेम चेन्स हैं हमारी DNA प्रोटीन्स की कि नहीं, इफ दे आर, और RNA प्रोटीन्स की इफ सेम है दैट मीन्स कि ये पक्का वही ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल कोरोना की बात हो रही है तो जब हम उसमें देखते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म इज सेम DNA मटेरियल इज मल्टीप्लाइंग और कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स 100% दिस ऑर्गेनिज्म इज देयर। So PCR is the 100%, not 100%, but 95, 65 to 75% specific and sensitive for the corona, but it's 99% for other tests like hepatitis B, C, and then PCR for tuberculosis, mycobacterium tuberculosis is available, and salmonella is available. All these give 100% particular result after getting the pure nucleic acid chains which are multiplying again. I hope I am clear. Immunological पे मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताई कि ये हम अलहदा से करेंगे जब हम इम्यूनोलॉजी वाला इम्यूनिटी वाला जो है चैप्टर अपना वो करेंगे। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या मेथड्स हो सकते हैं
जो इम्यूनोलॉजिकली हम डायग्नोज कर सकते हैं बैक्टीरिया। मेनली आज के चैप्टर के बाद आपको ये बताना चाहिए कि हम कैसे स्पेसिमेंस लेंगे डिफरेंट, वो किस तरह ट्रेवल करेंगे टू द लैब। उसके बाद आपको ये बताना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट है, यानी किस तरह क्या स्टेप्स हैं, डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, and how you will report the bacteriology culture report and basic। और उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो कि ना डिफाइन हो सके या जल्दी हो हमें, तो हम उनको इम्यूनोलॉजिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं इन द लैब। अब मुझे बताओ कि कुछ समझ लगी आपको, ये बेसिक चीजें समझ लगी? चलें, दैट्स गुड। कल हमारा इंशाल्लाह रिवीजन, कल हमारी रिवीजन क्लास है। वी विल टच ऑल द बेसिक टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको, लेकिन बस टेकिंग द फ्लाइंग पैटर्न, यू नो, नॉट इन डिटेल्स, लेकिन हम इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स उनके सारे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर कोई स्पेसिफिक चीज मतलब चाहते हैं कि हम उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप मुझे अभी बता दो, ताकि वो मैं लेक्चर में ऐड इन कर दूंगी। any of the topics which we have already done in general bacteriology, because कल हम general bacteriology को end कर देंगे। Come on। मैम एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंस। ओके, वो मेरे पहले से मेरे जहन में था, क्योंकि वो एक दफा में समझ में नहीं आता, उसमें थोड़ा डिफरेंट है पैटर्न, कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको बतानी चाहिए, द मेथड हाउ यू वो बताना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी वो मैं ऑलरेडी मेरे माइंड में था, एंड सेल स्ट्रक्चर भी, कि हम वो भी, और जेनेटिक्स को हल्का फुल्का टच करेंगे। और स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन आती है आपको? यस मैम। ओके, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन भी बहुत इजी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, कुछ डेफिनेशंस आपको बताना चाहिए। और उसके अलावा वैक्सीन का भी आइडिया मेरे ख्याल से हो गया होगा अब आपको, बैक्टीरियल वैक्सीन ये कितनी टाइप्स की होती हैं। ओके, कुछ ये मैंने आपको कहा था कि जिस दिन जो चैप्टर पढ़ते हो ना, उसी दिन उसकी रीडिंग कर लिया करो, ताकि कुछ ऐड इन करना हो लेक्चर में से तो उसी दिन तैयार कर लिया करो। बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।